الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں اور دینی ملی بھائیوں، آج ہمارے سامنے سے دوسرے تہوار جس کا اسلامک ہم لوگ عید الاضحیٰ کہتے ہیں، سال میں ہمارے لیے آپ کے لیے دو عید ہے، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ تو آج دوسرا تہوار، دوسرا قربان، یہ پہلی قربانی۔ تو میرے بھائیوں، آج کا دن پورے ہندوستان میں عید الاضحیٰ منایا جاتا ہے اور یہ خوشی کا دن ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اب تک چل رہا ہے، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے جو ایک قابل اور ایک حابل تھا، لیکن ان لوگوں میں سے قابل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اور حابل کی قربانی قبول ہو گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کرو، نہر کرو۔ اور یہ بھی اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالی کے پاس تمہارے قربانیوں کے گوشت نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے پاس اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو تمہارا تقویٰ، تمہاری پرہیزگاری وہ پہنچتی ہے اللہ رب العالمین کے پاس۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 راتیں خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اسماعیل کو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کیا میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے قربانی مانگی ہے، اے میرے بیٹے کیا تم راضی ہو؟ کیا تمہارا دل خوشگوار ہے؟ کیا تم مطمئن ہو؟ کیا تم اس چیز سے انکار کر رہے ہو کہ میں تمہیں قربانی کروں؟ یہ ابراہیم علیہ السلام سے قربانی کا سوال کیا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ تم سے میں قربانی مانگ رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی چھری کپڑے میں لپیٹ لی اور لپیٹنے کے بعد اسماعیل علیہ السلام کو مینا میں لے گئے، مینا میں لے گئے، اور لے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، کیا اسماعیل دیکھو تمہاری ماں ہاجرہ کو میں نے بتایا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے قربانی مانگی ہے؟ تمہارا کیا وچار دھارا ہے؟ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ تمہاری کیا رائے ہے؟ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی جملے کو قرآن میں ریکارڈ کر لیا، یا بنیا انی ارا فی المنام،
ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है। मनाम कहते हैं सोने की जगह, जहां हम लोग सोते हैं उस जगह को मनाम कहते हैं, मनाम। या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम, ऐ मेरे बेटे मैंने ख्वाब में देखा है, मैंने ख्वाबगाह में देखा है, मैंने सोने की जगह में देखा है, मैंने बिस्तर में देखा है। अन्नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा, कि मैं तुम्हें अपने हाथों से ज़बह कर रहा हूं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं क्या मेरे बेटे, कुरान में नाम ले सकते थे कुरान में, लेकिन नाम नहीं लिए। इस्माइल भी बोल सकते थे, लेकिन इस्माइल का नाम ले लिए। ऐ मेरे बेटे, मैं तुम्हें अपने हाथ से ज़बह कर रहा हूं। ऐ मेरे प्यारे बेटे, ऐ मेरे लफ्ज़ जिगर, ऐ मेरे नूरे नजर, तेरी राय क्या है, तुम्हारा मशवरा क्या है। उनके बेटे कहते हैं क़ाला या अबति फ़अल मा तुअमर, ऐ मेरे अब्बू जान, ऐ मेरे अब्बू जान, आपको जो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म नाफिज किया है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हुक्म दिया है, आप कर डालिए। आप बताओ, उनके नेक बख्त औलाद जो 86 साल होने के बाद बूढ़े हो चुके हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बूढ़े की उम्र में है, और उस वक्त 86 साल के बाद दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे कोई नेक बख्त लड़का अता फरमा, ऐ अल्लाह मुझे कोई नेक बख्त औलाद दे दे। और वही इस्माइल अलैहिस्सलाम को दिए, और उस नेक बख्त के बच्चे की जुबान से आवाज निकलती है, ऐ मेरे अब्बू जान, आपको जो हुक्म दिया गया है आप उनको कर डालिए। सताजिदुनी इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जमीन पर वतल्लहु लिल जबीन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जमीन पर पछाड़ दिया। अपने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल को अपने बेटे को जमीन पर लिटा दिया, पेशानी के बल वतल्लहु लिल जबीन, पेशानी के बल उसको पछाड़ दिया, पेशानी के बल उनको लिटा दिया, जमीन पर गिरा दिया और छुरी रख दी गर्दन पे। छुरी चला रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, 3 मरतबा तक छुरी चलाए, उनकी गर्दन में रख कर चलाए, लेकिन छुरी चलने का नाम नहीं लेती है, न उनका गर्दन अलग हो रहा है। इस्माइल कहते हैं ऐ अब्बू जान, मेरे सर के नीचे जो आपने चादर, जिस चादर से छुरी को लपेट करके मिना लेकर के आए हैं, उस कपड़े को, उस चादर को मेरे सर के नीचे से हटा लीजिए, दूर कर लीजिए। अगर यहाँ इस चादर रह जाएगी तो खून से खराबा गलीज हो जाएगी, खून से खराब हो जाएगी, गंदगी हो जाएगी। इस चादर को आप हटा लीजिए। जब मुझे सही तरीके पर आप कुर्बान कर देंगे तो इस चादर से आप मुझे लपेट करके गड्ढा खोद करके दफना देना। अल्लाह, दफना देना। ऐ मेरे अब्बू जान, और मेरे जिस्म में, मेरी बॉडी में जो कमीज है, इस कमीज को भी उतार लीजिए और इस कमीज को मेरी माँ हाजिरा को तोहफा दे देना, सलाम पेश कर देना। और ये सवाल ये भी इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप से करते हैं कि मेरे बाप, ऐ मेरे अब्बू जान, आप मुझे रस्सी से मेरे हाथ को, मेरे पैर को सही से बांध दे, ताकि आप जब मुझे गले में ज़बह करेंगे, कुर्बान करेंगे, तो मैं फड़फड़ा नहीं सकूंगा, मैं अपना फड़फड़ा नहीं सकूंगा, अपनी तकलीफ दुख को
अपने एहसास नहीं कर सकूंगा और उस एहसास के जरिए से आप अपने अल्लाह के हुक्म को बजा नहीं ला पाएंगे। ऐ मेरे अब्बू जान, आप मुझे रस्सी से बांध दीजिए ताकि मैं फड़फड़ाऊं जमीन पर, हाथ पैर छीटूं, उसके छीटने की वजह से कहीं आपको रहम ना आ जाए और अल्लाह के हुक्म को आप ना कर सके। मेरे प्यारे साथियों, जिस शख्स को सच्ची मोहब्बत अपने औलाद के पास है, मेरे प्यारे साथियों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल के गर्दन में छुरी रख दी है, वतल्लहु जिलजबील, और जमीन पर उनको पछाड़ दिया है। जमीन कांप गई, आसमान थर्रा गया। तख्लीक आदम के इतराज करने वाले फरिश्ते जारो कितार रोने लगे। छुरी चलने की नाम नहीं है। आवाज आती है, बयाबान जंगल की तरफ से आवाज आती है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज आती है, कद सद्दक़त रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। ऐ इब्राहिम, तुमने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया है, तूने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया है। ऐ इब्राहिम, पलट कर देखो, बस ये कहते थे। ऐ इब्राहिम बस, अल्लाह तबारक व तआला कह रहे, ऐ इब्राहिम बस पलट कर पीछे देखो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पीछे देखते हैं, पलट करके क्या देखते हैं कि दुम्बा ज़बा पड़ा हुआ है। दुम्बा एक ज़बा पड़ा हुआ है, ज़बा किया हुआ है, और वो दुम्बा अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से उतार दिया। इब्राहिम, मैंने तो कुर्बानी मांगी थी, तुमको तो छुरी चलाने का काम था, तुमने छुरी चला दिया। मैंने तो तुमसे तुम्हारा बेटा मांगा था, तुमने अपने बेटा को पेश कर दिया। इब्राहिम, छुरी चलाना तेरा काम था, बदला देना मेरा काम था, इस्माइल को बचाना मेरा काम था। तो मेरे प्यारे साथियों, ये बड़ा अजीब मंजर होता है। सहाबा इकराम ने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते पूछते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बानी क्या है? कुर्बानी क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते फरमाते हैं, हाजिही सुन्नतु अबीकुम इब्राहिम, ये कुर्बानी तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह भी सकते थे कि मेरी सुन्नत है, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहे नहीं। हाज़िही सुन्नतु अबीकुम इब्राहिम, ये इब्राहिम तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। और